محمود محمود محمود، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چلے اٹھے، دیر ہو جائے گی. نئی نئی نوکری ہے، ٹائم پہ جائے. اور آملیٹ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. یہ کوئی میری پرانی ٹینشن والی نوکری تھوڑی ہے کہ اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں تو مصیبت آ جائے گی. یہاں تو میں بادشاہ ہوں، اپنی مرضی کا مالک. پھر بھی محمود آپ کو عادتیں بدلنی پڑیں گی، ایسے کام نہیں چلے گا. جلدی اٹھنا سیکھیں. غضب خدا کا، ابھی تو صرف 7 بجے ہیں اور بھائی اپنا آفس تو 9 بجے لگتا ہے. مگر میرا اسکول تو 7:30 بجے لگتا ہے نا، اور آج پہلا دن. اوہو، تو یہ بات تھی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم ایسا کرو، یہاں بیٹھو، جلدی جلدی ناشتہ کرو، دیر ہو جائے گی تمہیں. اور یہ اخبار مجھے دو. آپ کا ناشتہ؟ بھائی تم وہ آملیٹ ڈھک دو، چائے میں خود بنا دوں گا. محمود آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ہاں ہوں میں ناراض. بھائی تم پاگل، بیٹھو بیٹھو، پاگل ہو کیا؟ میں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوں گا کیا؟ اور ویسے بھی میں نے تمہیں اگر نوکری کی اجازت دی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر دی ہے نا. اور اگر انسان چھوٹا موٹا کام کر لے تو اس کی شان تھوڑی گھٹ جاتی ہے. اچھا میں ایک کام کروں گی، آپ کے لیے نیا ٹفن لے آؤں گی. کل رات میں لنچ بنا دیا کروں گی. پتہ نہیں آپ کیا کھاتے ہوں گے سارا دن. بھائی کھانے کی فکر نہ کرو، مجھے مسز خان کھلا دیتی ہیں. کون کھلا دیتی ہے؟ مسز خان، ارے میرے آفس میں کام کرتی ہیں، بہت ہی اچھی خاتون ہے، بالکل مجھے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتی ہیں. پھر بھی محمود اچھا نہیں لگتا نا روز روز. ایک دن وہ لے کے آتی ہیں تو ایک دن آپ لے جایا کریں. مجھے نہیں پتا، دیکھوں گا میں. جی یہ بتاؤ تم جاؤ گی کیسے؟ بس روڈ کراس کر کے بس مل جائے گی. بس کا نمبر معلوم ہے؟ پتا ہے نا؟ پہنچ جاؤں گی محمود، آپ پریشان مت. پتا لگا اسکول کی جگہ تم کہیں اور چلی گئی. وعلیکم السلام. آؤ محمود آؤ، بیٹھو. جی آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں بس میں بھی 10 منٹ میں نکلنے والی ہوں. چائے پیو. اچھا اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم ذرا آج پلاٹ کی طرف چکر لگا لو. بہت دنوں سے کوئی اطلاع نہیں ہے، چوکیدار بھی نیا ہے. جی وہ مسز خان، میں نے کام کی لسٹ تو بنا لی ہے اور میں اسی ترتیب سے چل رہا ہوں. میں نے سوچا ہے کہ اب اس پلاٹ کو میں بیچ دوں. دور دور پھیلی پراپرٹی سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے. مگر وہ تو کمرشل پلاٹ ہے اور آج کل پراپرٹی سے قیمت گری ہوئی ہے. نہیں جی اس پر بیچنا صحیح نہیں ہوگا. امی وہ پلاٹ تو میرے نام ہے نا. خیال میں عباس پہ 1 یونٹ بنگلوز بنوانا چاہتے تھے. اس پلاٹ کو بیچ کر جو پیسہ آئے گا وہ بھی تو تمہارے ہی اکاؤنٹ میں جائے گا. میرا یہ مطلب نہیں تھا. دیکھو اتنا بڑا پروجیکٹ سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے. خیر اس پہ ہم بعد میں بات کریں. آپ کی چھوٹ کیسی ہے؟ ہلو. جی آپ تو ٹھیک ہے. ویسے مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ میں اس کی طبیعت درست نہیں کر سکا. ایکچولی میں ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھا اس لڑائی کے لیے. خیر میں اپنا بدلہ تو ضرور لے لوں گا. اب اس کی نوبت نہیں آئے گی. وہ فلیٹ چھوڑ کر جا رہا ہے اور شیلا کا فون تھا تمہارے لیے. کہہ رہی ہے کہ اگر تم فارغ ہو تو وہ آ جائے.
मैं तो फारिग हूँ। मगर हर बार वो क्यों है अम्मी? कभी मैं भी इसके घर जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन फिर मुझे ही तुम्हें छोड़ना होगा क्योंकि ड्राइवर तो आया नहीं आज। तो आप ही छोड़ दे, वापसी में ड्रॉप करा देगी। अगर आप बुरा ना समझे तो मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, आपको देर हो रही है अपॉइंटमेंट के लिए। तुम ही कर सकते हो। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, महमूद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो मैं ये फाइलें रखता हूँ उधर, इंतजार करूँ। अच्छा, मैं बस निकल रही हूँ। नहीं रह जाओ, तो मैं क्या करूँगी? मैं भी पढ़ूंगी यहाँ पे। गुड आफ्टरनून मिस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें उठाने आया हूँ। इस चक्कर में अपना आखिरी पीरियड भी छोड़ दिया मैंने। पीरियड क्यों छोड़ा? इतनी गर्मी हो रही है, मैंने सोचा कि आइसक्रीम खाएं। क्या यही वजह है? आइसक्रीम? यही वजह और क्या? नहीं, बच्चों से खेलने आया हूँ मैं। कुछ पता नहीं तुम्हारा। देव, मैं भाई आगे मैं जाऊँ? चल। आप बहुत खुश नजर आ रही है। खुश तो मैं इसलिए हूँ कि बहुत दिन के बाद घर से निकली हूँ, वरना तो बिल्कुल बंद होकर रह गई थी। आपको निकलना चाहिए घर से, वरना तो आप जिंदगी से बेजार आ जाएंगे। मुझे बेजार जिंदगी गुजारने की आदत पड़ चुकी है, मेरे लिए कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। आपके पास इतना कुछ है करने को? मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है ना, अगर आप सही तरह इन्वॉल्व हो जाए ना इसमें, तो आप घर बैठे काम कर सकती हैं। मुझे प्रॉपर्टी के कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं पसंद कि लोग मेरी जिंदगी पर तरस खाएं, फिर इसको सुधारने के मंसूबे बनाएं। ठीक है जी। कहते रहते थे कि स्कोर बनाओ, काम करो। जब से मैंने बताया कि स्कोर पर जाना शुरू कर दिया तो कहते हैं कि चलो नंबर 2 समझ में नहीं आता। चाहते क्या है मुझसे? तुम्हारे ख्याल में क्या वजह है? पता नहीं, मुझे तो कोई वजह नहीं समझ में आता। अब अच्छा भी लगता है कि वो पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, मैं घर पे बैठा हूँ आइसक्रीम खाऊं। नहीं, मैं उनको समझाऊंगी, वो मेरी बात समझ जाएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। यानी कि अब जेबी अब्बा को समझाएगी? वाह भाई। क्या मतलब है? मैं बड़ी हूँ तुम सबसे, तो मैं तुम्हारे लिए बात नहीं कर सकती। मेरा फर्ज बनता है तुम लोगों के काम आऊँ। असल में जब तुम इतनी समझदारी की बातें करती हो ना, मैं बिल्कुल हैरान हो जाता हूँ कि ये जेबी बोल रही है। जहर लगते हो ऐसी बातें करते हो। वैसे हमेशा ही करते हो, बात शुरू करते हो आधी बात खा जाते हो। भरोसा नहीं था तो बात क्यों शुरू की थी? वैसे जेबी तुम्हें बड़ा एतमाद आ गया, पहले तो तुम ऐसे बातें नहीं करती थी। इससे टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ये कह रही थी कि अगर अब्बा चाहते हैं कि तुम नहीं बैठो तो उनको किसी और बंदे को रखना चाहिए ना। अभी इतनी आमदनी नहीं हो रही कि किसी और को रखा जाए और उसको तनख्वाह भी दी जाए, और जो मुनाफा हो भी रहा है वो भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुनाफा हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन अब्बा घर पर कुछ नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो बैंक में जमा करा रहे होंगे। बैंक में तो वो नहीं जमा करा रहे, तो मुझे पता है। महमूद को तो नहीं पैसे दे रहे? महमूद भाई को क्यों पैसे देने लगे? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इसकी एक ही वजह हो सकती है, अब्बा ने खुफिया शादी कर ली है और सारा पैसा उधर दे रहे। बदतमीजी की बातें क्या करो? पब्लिक में मार दी हूँ मुझे। चुप करो भाई, आप बताइए क्या करोगे? सबके सामने मार दी। क्या शादी दूसरी वो करे? मार बैठा हूँ। मैंने सुन लिया ना। हो सकता है।
आप कुछ थके हुए से लग रहे हैं, परेशान हैं? नहीं बेटा, भला मुझे क्या परेशानी होगी? हाँ, याद आया, वो कब जा रहा है? वो तो चला ही जाएगा आजकल में। ये आपको क्या हो गया था? बजाय इसके कि उसको मना करते और शायद होने लगे। और ये सलमा की बच्ची बुद्ध बन के बैठ गई। आयशा को तो जवाब ही नहीं है, उन्हें तो अपनी शॉपिंग की पड़ी रहती है। वक्त रशीदा बेगम, जब एक इंसान ने फैसला कर ही लिया तो उसे कैसे रोकता? और फिर ये उसके मुस्तकबिल का सवाल है, उसे जाना ही चाहिए। चाहे आपकी अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह हो जाए, है? उसकी कोई फिक्र नहीं है आपको? क्या हो गया आपको? बेटी का मुस्तकबिल क्यों तबाह होने लगा? अगर वो वहां से कामयाब होकर आता है तो सलमा की जिंदगी भी तो बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर वो वहां से वापस आया तब ना, और अगर उसने वहां शादी कर ली तो फिर क्या होगा? वो ऐसा इंसान नहीं है, सिर्फ 6 माह की तो जा रहा है। 6 माह के बजाय अगर वो 6 साल वहां रुक गया तो वापस कौन लेकर आएगा उसको? अच्छा खासा निकाह हो जाता, पाँव में जंजीर तो पड़ जाती लड़के के। और अगर वो निकाह करके गायब हो जाता फिर? अरे भाई, ये तो फिर किस्मतों के चक्कर है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर लेना। अम्मी, अब आप इस बेटों की बहस को बंद करेंगे? हाँ, कभी अब्बू से भी तो कोई उनका मसला पूछ लिया करें आप। तुम्हारे अब्बू की तो एक पुरानी आदत है, जरा परेशानी होती है चुप साध लेते, बीमारी हो तो मजा लेके कभी किसी को बता दे। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। मैं जरा स्टोर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। अभी तो आप आए थे। अभी एक जरूरी काम याद आ गया है, जल्दी आ जाऊंगा। मेरे को कितनी घबराहट हो रही है, तो कितने मजे से गोलगप्पे खा रहे लाए। तो और क्या करूं, छलांगे मारूं? अभी तुम क्यों निकाले गोलगप्पे? मैं नहीं खाता, बड़े खतरनाक किस्म के जरासीम होते हैं इसमें, नजर भी नहीं आते। मुझे नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं खा रहा हूँ। मेरे खालू कहा करते थे, बेटा इमरान, जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं करना, सारी जिंदगी सर पकड़ के रहना पड़ेगा। काश उनकी बात मान ली होती मैंने, आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मेरे को। तो बेटा, किसने तुम्हें कहते इतनी मुश्किल जगह मोहब्बत करो? हजारों लड़कियां पड़ी हैं, किसी से बेइज्जत लड़ा लेते? अरे मेरे दोस्त अली साहब, जितनी बातें आपकी ज़हन में आती है ना, ये सब आप चौपिया के सामने बोल दिया करें। तो मेरी हैसियत का कुछ अंदाजा तो। जितना अंदाजा सूफिया को तुम्हारी हैसियत के ना, मेरे ख्याल से और किसी को नहीं है। खैर चल छोड़। हाँ, तू मुझे अपने पैदाइश की तारीख और बाकी डिटेल्स दे दे, ताकि मैं तेरा जायचा निकलवा दूं। यार तारीख पैदाइश के बारे में तो सब कंफ्यूज है। ये याद रहा, यही काफी है, वरना इतने बड़े सदमे के बाद तो लोग अक्सर चीजें भूल जाते हैं। तो बात नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अंदाजे से काम चला लूंगा। यार वो अंदाजों में कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर देना। इमरान, अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है तो अब ये दो तुम पैसे गोलगप्पों के और जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना तुम्हारा काम। नाराज क्यों हो रहे यार? मैं कुछ नहीं बोलूँ, तू बस मेरा जायका जरा जल्दी बना दे। उसमें शादी की तारीख जरूर डाल देना, ताकि मेरे को आसानी हो जाए। तेरे को ये शादी करने की कब है? अब्बा कह रहे थे बेटा ये 6 महीने में कर ले। उनको है ना सौंफ सुपारी की फैक्ट्री लगानी है, तो इसलिए जरा शादी जल्दी करनी पड़ेगी। ये सौंफ सुपारी से शादी का क्या ताल्लुक? कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या अपनी शादी में लोगों को सौंफ सुपारी खिलाओगे? नहीं, अम्मी कह रही थी जो जहेज में रकम मिलेगी ना, ये फैक्ट्री लगाने में काम आएगी। हाँ, समझ गया। तू फिक्र नहीं कर इमरान, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा ना कि तेरी शादी सौंफ सुपारी की फैक्ट्री में ही होगी। हाँ, अब खा ले गोलगप्पा, खा ले, अस्पताल इधर पास ही खा ले। क्या मुन्ने? हाँ। अरे आप मेरी बात समझ रहे हैं या समझना ही नहीं चाहते? मुझे लोगों ने बताया है कि आपने वहां कब्जा किया है और उन लोगों को आपने वहां बात किया है। बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। बल्कि बेहतर ये होगा कि काम की बात करो। काम की बात ये है कि आप वो प्लॉट खाली करें, वो मिसेस खान का, प्लीज। तुम्हारा तो नहीं है जो फिक्र में दुबले हुए जा रहे हो। जब मिसेस खान को ख्याल आएगा तो देख लेंगे। अजीब शख्स है, मैं उनका मैनेजर हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज खाली करें वो। मैनेजर ही हो, कोई पार्टनर नहीं जो तुम्हारी जेब से कुछ जा रहा है। मैं वहां बंगले बनवाऊंगा। आप बंगले नहीं बनवा सकते वहां, वो प्लॉट मिसेस खान का है। 2 मिनट में आपको बाहर निकाल देंगी वहां से, वो उनकी मिल्कियत है। वो मिल्कियत सिर्फ कब्जे की होती है और उस पर अब मेरा कब्जा है। आप किसी को कैसे किसी के प्लॉट पे आबाद कर सकते हैं? ये गैर कानूनी है। कानूनी चीजों को साबित करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, और फिर ऐसे केस लंबे चलते हैं। कौन जाएगा अदालत में, तुम या मिसेस खान?
आप क्या चाहते हैं? इस मामले से अलग हट जाओ और चुप करके बैठे रहो। ये मेरी नौकरी का सवाल है। जितनी तुम्हारी 2 साल की तनख्वाह है मुझसे ले लो और इस मामले से आंखें बंद कर लो। ज्यादा तावन करोगे तो और भी मिल जाएगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो बेवकूफी होगी ये तुम्हारी। अब तुम जाओ, आराम से सोचो, फिर वापस आ जाना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। सबा 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 हो सकता है मैं भूख के होते हुए आई हूँ। नहीं लेना चाहिए। हेलो हेलो सुफिया, मैं बात कर रहा हूँ। कौन? मैं भाई अली। हाँ अली, खैरियत तो है ना? हाँ वो खैरियत है। मैंने इसलिए फोन किया था कि हाँ बोलो। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि तुम जेबू का ख्याल रखा करो। अरे क्या उससे कुछ हो गया है? हुआ कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा था। नहीं तुम बेफिक्र रहो, मैं उसका ख्याल रखती हूँ। बस क्या करूँ, मैं भी इतनी उलझी हुई हूँ ना। शाम को जाऊंगी मैं उसकी तरफ। किस वक्त? बस जैसे ही टाइम मिलता है। फिर भी कोई अंदाजा? क्या हो गया अली? मुझे तो तुम खासे परेशान लग रहे हो। नहीं, बात कुछ नहीं है। वो बस तुम जेबू से नहीं कहना। क्या? यही कि मैंने फोन किया था। अच्छा, नहीं बताऊंगी। खुदा हाफिज। इतना फजूल फोन खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। है तो परेशानी की, लेकिन सही वक्त पर पता चल गई है बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं खुद जाऊँ उस प्लॉट पर, उस आदमी से भी बात करूँ, देखूँ तो क्या हो रहा है वहाँ। अरे भाई ये तुम्हारे करने का काम नहीं है, और फिर तुम्हें क्या जरूरत है इन उलझनों में पड़ने की। मैं जिंदा हूँ अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूँ, हर मामले में आपकी तरफ देखती रहूँ। देखें, मामले में आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। ये तुम्हारे करने का भी काम नहीं है, तुम्हारा फर्ज था बताना, तुमने बता दिया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप क्या करेंगी? तुम्हारे इब्राहिम अंकल से बात करूंगी।
ایسے معاملات میں صرف تعلقات ہی کام آتے ہیں. جب 2-4 ڈنڈے پڑیں گے نا ان لوگوں کو تو خود ہی پلاٹ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اور تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں بھائی، تم وہاں جاتے رہو جب تک کچھ ہو نہیں جاتا، تاکہ ان لوگوں کے ارادے پتہ لگتے رہیں. اس شخص کے چہرے پہ سکون تھا، اس کو کسی بات کا نہ ڈر تھا نہ خوف. ہاں، سمجھ رہا ہوگا کہ زمین لاوارث پڑی ہے، بیٹھ جاؤ، کون سا کوئی پوچھنے آئے گا. جی اگر آپ اس کے چہرے پہ اعتماد دیکھتی نا تو آپ تو حیران رہ جاتی. کیا کیا جائے، آج کل لوگ بھی تو اعتبار کے قابل نہیں رہے. اب اگر تمہاری جگہ کوئی اور شخص ہوتا نا تو جیب میں پیسے ڈال کر مزے سے گھوم رہا ہوتا. ویسے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جی دیکھیں، یہ میری تربیت کا حصہ نہیں رہا ہے. مجھے ہمیشہ سے حق حلال کی کھانے کی عادت رہی ہے. میں اس طرح کے مفت کے مال پر نظر نہیں رکھتا ہوں. یہ انسان کے اندر کی شرافت ہوتی ہے جو اسے مضبوط بناتی ہے، ورنہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے بہکانے کے لیے. میں کل ہی ابراہیم بھائی کے پاس جاؤں گی. میں بھی جاؤں گی. تم کیا کرو گی جا کے؟ وہاں کام کی باتیں ہوں گی، تم بور ہو جاؤ گی. گھر پہ آرام کرنا. تو اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہاں کیا بات ہوئی، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ارے بھائی، میں خود تمہیں بتاؤں گی جب معاملات سلجھ جائیں گے. اور دیکھو، میں نے ہمیشہ تمہیں ان الجھنوں سے دور رکھنے کی کوشش اور کی آپ ہے. اپنی اس کوشش میں مکمل طور پر کامیاب بھی. ارے باقی ہر چیز سے دور ہوتی جا رہی ہوں. ارے بیٹا میں خود تمہیں شامل کروں گی، لیکن وقت آنے پر. وہ وقت جو آپ چاہ رہی ہیں وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ جی مجھے اجازت دیجیے. ٹھیک ہے. سنو میری بات سنو. دیکھو اتنا غصہ نہیں کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو. آپ اور دیں. اچھا تم میری طرف دیکھو، میری بات سنو. عمران، اس سے پہلے کہ جیبی اور صوفیہ تو میرے ساتھ چلو. میں نے بہت سوچ سمجھ کے اور محنت سے تمہارا یہ ذائچہ تیار کیا ہے. دیکھ لو اسے. یار مجھے تو بس یہ بتا دو، اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ میرا کاروبار ڈوبتے ہوا تو نظر نہیں آ رہا. تمہارا کاروبار تو ایک موٹی مرغابی کی طرح آرام سے تیر رہا ہے. اچھا، لیکن پھر کیا مسئلہ ہے؟ شادی کے بعد ہم دونوں ہنسی خوشی تو رہیں گے نا. شادی ہوگی تو ہنسی خوشی کی نوبت آئے گی نا. ابھی تو آئندہ 2 سالوں کے لیے مجھے تمہارا شادی کا خانہ بالکل خالی نظر آ رہا ہے. نہیں، خدا کے لیے اسے فوراً بھر دو. یہ کوئی خالی کنستر نہیں ہے عمران جس کو میں آٹے سے بھر دوں. اور اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کی تو بہت خطرناک نتائج ہے. بہت خطرناک نتائج ہے. یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ صوفیہ ساری زندگی میرے سے لڑتی جھگڑتی رہے گی، میرے کو ذلیل کرے گی. اس سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے اس کی تو تمہیں عادت ہو گئی ہے، لیکن اگر تم نے یہ شادی کر لی تو اس کا اثر تمہاری زندگی پر ہوگا عمران. تمہاری زندگی پر. تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ مرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سسک کے جینا ایک عذاب ہے. بیماریاں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی عمران. یار وہ تو اب بھی نہیں چھوڑتی ہیں. ذرا سی کوئی ایسی ویسی چیز کھا لوں تو طبیعت بگڑ جاتی ہے. ابھی کچھ نہیں تو گرمی کا زکام ہو گیا ہے. ابھی تو صرف گرمی کا زکام ہوا ہے، لیکن اگر تم نے شادی کر لی تو تمہیں ہر موسم کی ہر بیماری ہو جائے گی اور پھر تم ایک سوکھے ڈھانچہ بن جاؤ گے. تمہارا یہ شاندار چہرہ یہ اجڑ جائے گا. تمہارے یہ گھنے بال یہ گر جائیں گے اور تم ایک سوکھے بانس کی طرح نظر آؤ گے. سوکھے بانس. یار میرا دل نہیں دے رہا، اس مسئلے کو جلدی حل کرو. ابھی تو تمہارے ستاروں میں کافی رکاوٹیں ہیں، بہت افراتفری مچی ہوئی ہے، لیکن اس کا ایک حل ہے. وہ کیا؟ شادی لیٹ کر دو. لیٹ؟ تقریباً 2 سال. نہیں صوفیہ بدل جائے گی. کیوں بدلے گی صوفیہ؟ تمہیں تو اس کی پہلی اور آخری خواہش ہو. اچھا، اس نے ایسا کچھ کہا ہے کیا؟ اب تنگ نہیں کرو یار، بتا بھی دو. دوستوں میں کیسا پڑتا؟ دیکھو یار تمہیں پتا ہے وہ زیادہ باتیں تو کرتی نہیں ہے. بس یہ کہتی تھی کہ جس کو اس نے چاہا ہے وہ اسے مل گیا. اب زندگی سے کیا لینا کیا دینا. تو اس کو بتا دینا میرے بھی یہی جذبات ہیں. میں کوئی کبوتر نہیں ہوں عمران جو یہاں کا پیغام ادھر لے کر جاؤں. تمہیں جو کہنا ہے خود کہو. یار جب دونوں طرف سے ایسے جذبات ہوں تو میں شادی کیسے لیٹ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نہیں کرو. لیکن اگر تم ہنی مون کے بعد صوفیہ کو بیوہ دیکھنا چاہتے ہو تو کر لو شادی، کوئی بات نہیں. یار یہ ذرا مشکل کام ہے. یہ تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے میں اپنی فیملی کو کیسے بتاؤں گا. انہیں تو بالکل یقین نہیں آئے گا اس بات کا. انہیں یقین آئے گا عمران، انہیں یقین آئے گا، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. یعنی کیسی محبت ہے تمہاری جو 2 سال نہیں انتظار کر سکتی. 2 سال؟ یار میرے کو غیرت نہیں دلاؤ، ورنہ میں 2 سال کے بجائے 200 سال انتظار کر کے دکھا دوں گا. تھوڑا سوچنے کا موقع تو دو. ٹھیک ہے تو سوچ لو،
लेकिन ऐसे ना हो कि तुम सोचते रहो और वहां तुम्हारा निकाह पढ़वा दिया जाए, फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। खैर मैंने तुम्हें वार्न कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम अब जा सकते हो, जाओ और सोचो मैंने क्या कहा, जाओ बस। यारी तेरी चोट का क्या किस्सा भाई? मिसेस खान के आगे नंबर बना रहा था यार मैं। यार छोड़ इस बात को यार, तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। भाई क्या सारी तनख्वाह यही खर्च करोगे? यार तनख्वाह नहीं थी, ये तो एडवांस मिला था। अच्छा कुछ भी हो सोच समझ के खर्च किया करो। वैसे यार इतनी जल्दी गाड़ी कोई देता तो नहीं है, लगता है बिल्कुल ठीक जगह पे जाके सेट हुए हो। और इसे भी चाहिए ना भाई कि सही जगह को कैश कराए, 2-4 पैसे बना ले, कुछ लोगों में उठने बैठने के काबिल तो। वो नहीं दूंगा। ये मिसेस खान है ना, ये जिनके पास मैं काम कर रहा हूँ, हाँ। बहुत पैसा है यार, बहुत पैसा है। इनको तो ये भी नहीं मालूम कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। जान उन्हें सब मालूम है, बस तुझे हंसवा रही है। क्या मतलब हंसवा? नहीं ऐसा नहीं है यार, उनके पास जितने भी मैनेजर्स आए ना, जो कभी देखा न परखा, जिलेट का नया आर्टिक आइस शेव जेल, थोड़ा सा जेल बहुत सफोम बनाने, स्मूथ शेव और ताजगी से भरपूर नई खुशबू, जिलेट का नया आर्टिक आइस शेव जेल, स्पेशल ट्रायल पैक, आज ही आजमाइएगा। उनको खूब लूटा है, खूब बेखूब बनाया है मिसेस खान को। उनकी एक बेटी है, सारा ध्यान उनकी तरफ रहता है उनका। भाई उनकी माजूर बेटी की तो वो कर देंगे शादी, और उसका जो मियाँ आएगा ना, वो तुम्हें कान से पकड़ के बाहर खड़ा करेगा और सारी जायदाद पे खुद कब्जा कर लेगा। वो तुझे निकाल के एक बुढ़ा मैनेजर रखेगा। तुम तो ऐसे करो जैसे समीरा की कल शादी होने वाली है। क्या होगी शादी उसकी? वो नहीं हुई तो हो जाएगी यार, जब पैसा पास हो ना तो शादी आदि में देर नहीं लगती। भाई समझाना हमारा काम था, समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। हाँ भाई, अब मुझे एहसास है इस बात का। तुम लोग फिक्र ना करो, मैं अपनी आंखें और कान दोनों खोल के रखूंगा, डोंट वरी। कॉपियाँ चेक करियो। सभा तरीका है किसी के घर में आने का, जान निकाल लेती हो। अब मजाल तुम्हारे आने का कभी पता चल जाए। कहाँ इतने दिनों से? कुछ काम था, उलझ गई। और लॉकेट देके उस दिन गायब हो गई। सभा बहुत कीमती तोहफा है, मैं नहीं ले सकती, मैंने संभाल के रखा है, प्लीज तुम ले जाओ। बेबी बैठ जाओ। नहीं, मैं ये लॉकेट बिल्कुल भी वापस नहीं लूंगी। प्लीज बेबी, ये वाहिद चीज है जो मैं अपने मियाँ से बचा पाई थी, वरना वो तो उसको भी जुए में हार देता। मेरे लिए तो कार्ड भी काफी था। प्लीज बेबी, तुम मुझसे वादा करो, तुम जरूर पहनोगी, वादा करो। थैंक यू। अच्छा प्रॉमिस, मैं हमेशा पहन के रखूंगी बस। थैंक यू। वैसे तुम्हें मेरी सालगिरह का पता कैसे चला? जिस दिन तुम्हारी सालगिरह थी ना, मैं आ रही थी तुम्हारे पास, मगर तुम्हारे घर में इतना हंगामा था। सबा, ये कोई बात होती है? सारे घर वाले थे, तुम आ जाती, तुम सबसे मिलती, अली था, सुफिया थी, सब थे। बेबी तुम्हें पता है, मैं लोगों से मिलने से मुझे घबराहट होती है मुझे, इसलिए मैं कभी जोर भी नहीं देती। अच्छा ये देखो, मैं मुझे दी थी सालगिरह, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। इतनी खुश हो तुम सोच नहीं सकती। जितने मैंने ख्वाब देखे थे ना, वो सब पूरे हो गए, और मैंने सोचा भी नहीं था सब कुछ इतना सही हो जाएगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बेबी मैं चाहती हूँ तुम हमेशा इतनी ही खुश हो, बल्कि इससे भी ज्यादा खुश हो, और तुम्हें मेरी जरूरत भी ना रहे। क्या मतलब है? इंसान दोस्ती जरूरत के लिए तो नहीं करता, तो हमेशा के लिए होती है जनाब। जी जनाब, लेकिन जब मसरूफियत बढ़ जाती है ना, तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जी जी मैं समझ रही हूँ। वैसे तुम मेरे घर आके थक चुकी हो ना, अब मैं तुम्हारे घर आऊँ, तुम यही चाहती हो? अच्छा पता बताओ अपना, मैं तुम्हारे घर आऊंगी, पता लिखो अभी फौरन। तुम क्या करोगी मेरे घर? क्या मतलब है? तुम गायब हो जाती हो हर 4 दिन बाद, तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हें पकड़ तो सकूंगी एटलीस्ट। पता लिखो फौरन। तुम अपने मियाँ की वजह से मुझे नहीं बता रही ना? अच्छा बताऊंगी जब वो घर पे नहीं होगी।
और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो घर पे नहीं है? आकर क्या मतलब है भाई? देखो मैं आऊंगी और अगर वो घर पे हुआ ना तो मैं जाहिर नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जानती हूँ, और मैं वापस ही नहीं आऊंगी। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ अपना पता, लेकिन तुम अकेली नहीं आओगी। रस्तों का पता वता तो कुछ है नहीं। अच्छा, सिफत पापा के साथ तो सही है ना? हाँ, उनको दुनिया जमाने की गली कुचों का पता है, उनके साथ आ जाऊंगी बस। अच्छा, ये क्या कर रही हो? चेक कर रही हूँ, इतने क्यूट बच्चे हैं, तुम सोच नहीं सकते इतनी गलतियाँ करते हैं। तुमको पढ़ाना बनाना आता है ना? क्या मतलब है? मतलब इंग्लिश पढ़ा रही हो इसकी? मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम खुद ही कहती हो मेरी अंग्रेजी कमजोर है। कोई नहीं, तो मैंने सोचा लो खाओ। ये कोई अंगूर तो है नहीं कि एक एक दाना करके खाऊं? काट के ला दो। काट खिला दो। हाँ प्लीज। ये लो, हटाओ, दूर करो उसको। मेरे को ऐसा खून खराबे वाला मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक भी बूंद नहीं होगी जिसम में खून की। हाँ, तुमसे चला तो जाता ही नहीं है। कभी तुम जरूरत नहीं जाना कि सीटों पे हमारी हाँ चलते चलते। सोफिया, मेरे को इतनी मोहब्बत की आदत न डालो, वरना मेरा कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। कलेजा नहीं हुआ, गुब्बारा हो गया, जब देखो फटने को तैयार रहता है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम जरूरी बात कौन सी करने आए हो? वो बात ये है कि वो शादी अभी नहीं हो सकती। कौन सी शादी? मेरी और तुम्हारी शादी। देखो, मुझे पता है ये सदमा तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा है, लेकिन प्लीज इसे बर्दाश्त कर लो। 1.25 साल की तो बात है। हाँ? तुम सही कह रहे हो? हाँ? क्या वाकई तुम सही कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है इमरान। यकीन कर लो सोफिया, क्योंकि तुम्हें अभी मेरा बहुत साथ देना है, और फिर ये बात दुनिया को भी तो बतानी है। दुनिया? हाँ? कौन सी दुनिया? अरे मेरी अम्मी, तुम्हारी अम्मी, हम दोनों के अब्बा। इमरान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं बता ही नहीं सकती मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं भी वही सब कुछ महसूस कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सदमे की वजह से ना कमर टूट गई है, और परेशानी में भूख और चमक गई है। कोई आसान फल नहीं है खाने के लिए। है ना, मैं केले ला देती हूँ तुम्हें। हाँ। तुम केले खाओ, खिलते जाना, खाते जाना। हाँ। ये सही है ना? हाँ, ये सही है। मगर इमरान, एक बात तो बताओ मुझे। वो ये खुशखबरी तुम, ये मतलब है ये मनहूस खबर तुम अम्मी को कब बताओगे? तुम ऐसा करना, ये खबर अम्मी को खुद बता देना। उन्हें समझाना कि इमरान उनका है और उनका ही रहेगा। परेशान ना हो, मुश्किल वक्त काट ले। तुम फिक्र नहीं करो। हाँ। तुम फिक्र ही मत करो इमरान। ये वक्त तो ऐसे हंसते खेलते गुजरेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सोच भी नहीं सकते इमरान। हाँ, मैं केले लेके आती हूँ। हाँ, ले आओ। बस जैसे ही हम लोग बैंक से बाहर निकले, एक आदमी लग गया हमारी गाड़ी के पीछे। अल्लाह, मेरी तो जान निकल गई। नहीं नहीं, डरने की बात थी मिसेस खान, वो हमारे पास बहुत पैसे थे। हाँ भाई, सुन रही हो तुम समीना? मुझे तो ये फिक्र हो रही थी कि कहीं वो हमारे पीछे घर तक ना आ जाए। अकेली थी तुम यहाँ। वो आप दोनों के पीछे लगा हुआ था, पैसे चाहिए थे उसे, अब मुझसे इसका क्या ताल्लुक? अरे भाई, अगर ऐसे लोग घर देख लेना तो बार बार आते हैं। मुझे तो हर वक्त तुम्हारी हिफाजत की फिक्र लगी रहती है। हिफाजत की जरूरत आपको भी हो सकती है, सिर्फ मुझे क्यों? तुम नहीं समझोगी एक माँ का दिल क्या होता है। अरे रात रात भर तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचती रहती हूँ मैं। एक तो आपने मेरी परेशानी को अपने सर पर सवार कर रखा है। बचपन से लेकर अब तक मैंने सुख का सांस नहीं लिया। हर माँ अपनी औलाद की खुशी चाहती है। खुशी और जुनून में फर्क होता है। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था, क्या हुआ? जी वो मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी वो चोरी की होगी। फिर भी मैं पुलिस को इत्तला दे देता हूँ। आपने पैसे क्यों निकलवाए हैं? महमूद को देने हैं।
महमूद, यहाँ जिन जिन घरों में मरम्मत का काम है ना, तुम वो करवा लेना। मैं चाहती हूँ कि हमारे वापस आने से पहले काम निमट जाए। आप नहीं जा रही हैं? हाँ, मैं और समीना कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहे हैं। हाँ? अमेरिका। पहले मेरा ख्याल था कि 1 महीने तक वापसी हो जाएगी, लेकिन अब 2-2.5 महीने भी लग सकते हैं। आप छुट्टियों पे जा रही हैं? नहीं भाई, काफी अरसे से एक जरूरी काम रुका हुआ था यहाँ की मसरूफियत की वजह से जा नहीं सकती थी मैं। अब हालात कंट्रोल में है तो मैं इत्मीनान से जा सकती हूँ। नहीं, आप बेफिक्र होके जाइए। तुम्हें जिन चीजों की जरूरत हो उसकी लिस्ट बना लेना। वीजे आजकल में लगकर आ जाएंगे। अम्मी, आप ये एक बिल्कुल बेमकसद कदम उठा रही हैं। आपको इस बात का एहसास है? मैं नहीं जाना चाहती और ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर मुझे एहसास न होता ना तो ये सब कुछ न कर रही होती, आंखें बंद करके पड़ी रहती। इब्राहिम भाई से मैंने प्लॉट की बात कर ली है, वो देख रहे हैं इस मामले को। आप लोगों की रवानगी कब तक है? 10-12 दिनों तक इंशाल्लाह चले जाएंगे। और तुम भी जरा अपने काम पर एक नजर डाल लो। जहाँ जहाँ मेरे दस्तखत की जरूरत है करवा लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आप फिक्र ना करें, मैं इसी हिसाब से काम को देख लूँ। इंशाल्लाह आपका अच्छा वक्त गुजरेगा अमेरिका में। इंशाल्लाह। आपको क्या जरूरत है टायर बदलने की? कैसे अजीब अजीब काम करती हैं आप, हिम्मत है आपकी। अरे भैया, अगर पंक्चर हो गया था तो वहाँ रास्ते में खड़े होने से बेहतर था कि इंसान टायर बदले। क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई मदद को आ ही जाता है, खुद ही हो जाता है। जरूरत क्या है लोगों का एहसान लेने की? अल्लाह ताला ने तो हाथ पांव दिए हुए, इंसान को चाहिए खुद अपना काम खुद ही करे। मैं देखती हूँ जेबी कि ये तुम जो हो जरूरत से ज्यादा ही सहारे ढूंढती हो। अब तो मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। आप मुझे पहले देखती, जितने मुश्किल काम थे ना सब अली करता था। अच्छा, महमूद को कहाँ काम मिला है? पता नहीं, वो ऐसी बातें बताते नहीं हैं। शायद कोई मिसेस खान है उनके यहाँ। चलो, एक तरह से अच्छा ही है कि तुम्हें अपने दफ्तरों की उलझनों से दूर रखता है। नहीं, मगर मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करें, शेयर करें मुझसे अपनी बातें, दिल हल्का होता है। अच्छा देखो, ये जरा यहाँ से पलंग पे से ये एल्बम हटाओ ताकि बैठने की जगह मिले। तस्वीरें मैं तो देख लूं, किसकी हैं? अरे जरूर देखो, ये मेरी माजी की यादें हैं। तुम क्या करोगी? शादी से पहले मुझे इतना शौक था, मैं अम्मा अब्बा की एल्बम सारा देती रहती थी। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें इतनी अच्छी लगती हैं। एक जमाने में मुझे भी फोटोग्राफी का बहुत ही शौक। हाँ, मैंने तो आपको कभी कैमरे के साथ नहीं देखा। अरे भाई, वो जवानी के शौक थे, जवानी के साथ खत्म हुए। क्या आप हैं? इतनी खूबसूरत थी आप। हैं? क्या मतलब खूबसूरत थी? क्या आप खूबसूरत नहीं? मैंने ये थोड़ी कहा है, ये मतलब थोड़ी था। आप एक तो मेरी हर बात पकड़ के बैठ जाती हैं। ये आपका बेटा है ना? हाँ, बिल्कुल आपकी शक्ल है। ये बचपन में मुझसे बहुत मिलता था, लेकिन अब वो अपने बाप की शक्ल हो गया है। ये तो सबा है। सबा की तस्वीर यहाँ क्या करिए? ये कौन है इसके साथ? उसका मियाँ। बहुत बुरा आदमी है, बेचारी इतना बर्दाश्त करती है। तुम्हें कैसे पता? सबा ने बताया था। हम लोग अक्सर इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जेबी, बेवकूफ की बातें मत करो। सबा तुमसे कहीं नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि वो कब की मर चुकी है। जी? ये आप क्या कह रही हैं? ये हाँ तो जेबी, सबा मर चुकी है। रोज रोज के हंगामों से तंग आकर उसने एक दिन अपने को आग लगाकर खुदकशी कर ली। ये 7 साल पहले हुआ था। जेबी, हटो, तुम निकलो वहाँ से, निकलो, आग लग गई, निकलो, निकलो, जल्दी आओ। क्या हो गया? अच्छा तुम घबराओ मत, सिर्फ एक शोला ही तो था। सबा, एक शोला? एक शोले का मतलब समझती हो तुम? इस तरह कितनी औरतें जल जाती हैं, जल के मर जाती है, पता भी नहीं चलता। बस उस दिन उसके पास कोई नहीं था, अकेली थी, कोई उसकी मदद को भी नहीं आ सका। हो सकता था अगर वक्त से अस्पताल पहुंच जाती तो शायद बच जाती। आस पड़ोस में भी लोगों ने उसकी चीखों की आवाजें सुनी, लेकिन कोई आया ही नहीं, क्योंकि आए दिन उसका मियाँ उसको मारा करता था।
और रोज रोज का ये हंगामा था इसके पड़ोसी आदी हो चुके थे। महमूद को मेरा जेवर चाहिए। मेरा मियाँ भी यही करता था, ना दो तो मारता भी था। एक दफा जेवर दे दोगी ना तो कल कोई और फरमाइश खड़ी हो जाएगी। कभी हाथ तो नहीं उठाया ना उसने तुम पे? नहीं। हो सकता है तुमने इसकी नौबत ही ना आने दी हो। उन्हें बताओ जेबी, हर चीज मत छुपाओ। छुपाने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। छुपाओगी तो तुम्हारा आशा भी मेरी तरह हो जाएगा, और मेरा क्या हाल था तुम सोच भी नहीं सकती हो। बस ये तो एक ऐसा हादसा था जिसने मेरी तो जिंदगी का रुख ही बदल दिया। मेरा दिल बिल्कुल दुनिया से उजाड़ हो गया।